अब different types of questions are there. So I just actually want कि आपको पता लग जाए किस type के questions are there that you would be actually facing in the exam. के the first is कि you will be given a truth table and you have to create. नहीं, you will be given a logic circuit and you have to create a truth table. ठीक है जी. तो पहले ये करते हैं and you have to create the truth table. So the way I will put down कि किस type के questions आते हैं. So I'm going to put truth table from logic circuit. Is this fine? और इसको हम कर देते हैं type 1. Perfect. Okay. Yeah. Okay. So I need to make a truth table for this. So हम लोगों ने हमेशा एक ही option discuss की that we'll be making it by parts. All right. ठीक है, तो हम by parts बनाएंगे बेटा. And I will name every logic symbol I have in my logic circuit, right? Okay, so let's just name them as, let's just P, Q, R, and this might be X. And then I have two inputs, so I'm going to place it like this. I have A, B, P, Q, R, and X. And there are two inputs, so four possible combinations that it can be 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. And P पे गेट है and का क्या मतलब होता है? Multiply. Wires are coming from A and B, so let's just multiply A and B and write them in P. I am sending you a question on WhatsApp. I wasn't able to solve that one. Please discuss it in the class. Okay, Abhiha, think it done. So A and B को multiply करते हैं, so this would be 0, 0, 0, 1, right? Okay, then we have Q, that is OR, and OR means plus. A and B को add करते हैं, तो 0, 1, 1, 1. R is invert and the wire is coming from Q. So Q को invert कर देते हैं, this would become 1, 0, 0, 0. X is again OR, the wires are coming from P and R. Okay, so P और R को क्या करने लगो? Add. So this would be 1, 0, 0, 1. Perfect. So this is your first answer. Did you got this, everyone? Perfect. Great job. Okay, so let's just move on. Let's just solve one more question for this. तो ये आ गया. कोई मुश्किल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ये कर लेते हैं, ठीक है? P, Q, R, पीछे खड़े हो जो सारे, S and X. So A, B, C, P, Q, R, S and X. And I've got three inputs. So I will put 1, 2, 3, 4 zeros and 1, 2, 3, 4 ones, right? For B, I would put 2 zeros, 2 ones, again 2 zeros and 2 ones. For C, I would put 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Fine with this? Then P पे हो रहा है क्या? और किस का? A और B का. So 0 plus 0, 0, 0. And बाकी सारे 1 हो जाएंगे. Right? Q पे क्या हो रहा है? NOR. क्या हो रहा है? NOR. That is add and invert. And the wires are coming from B and C. ऐसी बेटा? ठीक है? B और C को क्या करना है? NOR. So 0 plus 0 is 0. So I would put 1. 0 plus 1 is 1. So 0. 1 plus 0 is 1. So 0. आप लोगों ने नहीं बोलना. ठीक है? And then 1 plus 1 is 1. So 0. And 0 plus 0 is 0. So 1. Then you have, एक मिनट दीजिएगा. Oh, come on, baby. Okay, now I'm okay with this. Okay, so 0 plus 1 is 1, so 0. And 1 plus 1 is 1, so 0. And 1 plus 1 is 1, so 0. 1 plus 0 is 1, so 0. ठीक है जी? Clear हो गया? यहाँ तक सही हो गया सारा? Okay, R पे क्या हो रहा है? Not of P. So P was 0, 0 or 1s. It would become 1, 1 and all zeros. Okay, great. And then you are on to S. S is exclusive OR of R and
Q है ना, R and Q ये आगे इनका एक्सक्लूसिव और है. XOR में क्या होता है, if the inputs are same it would result in 0 and if the inputs are different it would result in 1, right? So 1 1 would be 0, 0 1 would be 1, 0 0 would be 0, 0 0 would be 0, 1 0 would be 1, this would be 0 0 and then 0. And then X पे again exclusive और है, but this time it is of S and C. बच्चों ने पेपर में गलती कर दी कि उन्होंने इसको देखा नहीं. This is coming from C. Alright, so S and C. तो ये C दिया हुआ है और ये आ गया S और इनको क्या करना है, XOR. So C is 0, S is 0, so this would remain 0. 1 1 would be 0, 0 0 would be 0, right? And then you have 1 0 1, then you have 0 1 1, then you have 1 0 1, 0 0 would be 0, and 1 0 would be 1. So the answer is 0 0 0 1 1 0 1. A student needs to design a logic circuit to model the requirements for membership of a snooker club. Okay, so I love playing snooker. मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को पसंद है या नहीं. Anyways, so membership X depends on 4 criteria as shown in the table. So there have been 4 parameters given. A, B, C, D. Okay, great. Description of a parameter: A is over 18, B is recommended, C is full-time, and D is retired, with their binary values and their conditions. And binary values basically represents 1 or 0. So if a binary value is 1, so this means it is a simple parameter. If the binary value is 0, this means that it is a parameter with a NOT gate overhead, right? Okay, okay, means A can be 1, this means it is simply A, and A is 0, this means I'm talking about A bar. You got this? Okay. Now what I need to do, here dekhte hain. Membership is approved X is equal to 1 if a person is over age of 18 and has been recommended by a pre-existing member and either is full-time, either is working full-time or is retired, but not both. Oh. ये बड़ा अच्छा सवाल है. अच्छा चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ और बीच में वो क्रैक हो जाता है. आपने भी ऐसे ही करना है, सवाल देख के परेशान नहीं होना. दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू डू. तो हम इसके नीचे ही इसका जवाब देते हैं जी. तो बाबा ऊपर नीचे होना पड़ेगा तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है. A B C D हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट A B C D क्योंकि उसने कहा ड्रॉ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट दिस. ओके, so the first is over age 18, है ना, is over age 18 and has been recommended by a pre-existing member. तो पहला तो ये है ना, is over age 18. So over 18 is over age 18 should be true, है ना, and true has a binary value 1 of A. तो पहला तो क्लियर हो गया. ऐसे ही जी, ठीक है. ओके, सो लेट्स जस्ट पुट दिस. तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ गई, ये सिंपली क्या चाहिए, इज ओवर एज 18. क्लियर विद दिस? ओके, सेकंड इज हैज बीन रिकमेंडेड बाय अ प्री एग्जिस्टिंग मेंबर, है ना, यानी रिकमेंड भी हुआ हो ना, तो रिकमेंडेड वुड बी ट्रू. सो दैट इज द बाइनरी वैल्यू 1 ऑफ B. ओके, ग्रेट. तो हैज बीन रिकमेंडेड, ये आ गया हैज बीन रिकमेंडेड. और बीच में क्या आ रहा है, कैन यू सी दिस, क्या लिखा हुआ है, एंड. क्या लिखा हुआ है बेटा, एंड. एंड लिखा हुआ नजर आ रहा है. ओ अच्छा, तुम लोगों को थोड़ा सा वो नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं ऊंचा बोल देता हूँ, ठीक है. तो एंड है तो मैं दोनों के दरमियान क्या बना दूंगा, एंड गेट. ओके, ग्रेट. फिर एंड है ना, यानी वो दोनों कंडीशंस को एंड करना. तो पहले मैं दूसरी कंडीशन बना देता हूँ, ईदर इज वर्किंग फुल टाइम और इज रिटायर्ड but not both. Either is working full time, पहले तो ये ढूंढो, ऊपर दिया होगा आपको. Either is working full time, so full time should be yes, है ना, and is retired, है ना, ठीक है, और is retired, ठीक है, और is retired but not both. देखो ये कंडीशन है, मुझे ये तो पता लग गया कि C और D both should be true. तो मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ. ओके फाइन. सो C should be true and D should be true. देखो either is, अब मुझे देखो और नहीं हो सकता, है ना, और उसने दिया तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना, और is retired. नहीं, either is working full time
either is working full time or is retired, दोनों में से एक हो, है ना। देखो C D और ये है मेरे पास क्या आउटपुट, ठीक है, बट नॉट बोथ, either is working full time। अब now C is representing full time, है ना, ऐसे ही बेटा ऊपर जाके टेबल में देखो, C is representing full time, D is representing retirement, okay, so you have to crack this A levels in। C is working full time, D is the retirement। तो सुनो, either is working full time, है ना, either is working full time or retired, है ना, और is retired, या तो full time हो या retired हो, दोनों में से A, दोनों में से A, ये मैंने कर दिया दोनों में से क्या A, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 1, बट नॉट बोथ, तो अगर दोनों ऑफ है, ओके फाइन, ना फुल टाइम ना रिटायर्ड है, रखूंगा ही नहीं, अगर फुल टाइम भी है और रिटायर्ड भी है तब भी नहीं रखूंगा। तो दिस इज द आउटपुट फॉर विच गेट, XOR, डिड यू गॉट दिस? तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे XOR, और ये बीच में ये जो एंड आया था वो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे एंड। सो दिस इज द solution for this। This was solving logic gate type 2, logic circuit from scenario। ये आता है ना, हाँ ठीक है, सिनेरियो डन, लॉजिक गेट फ्रॉम सिनेरियो हो गया हमारा, और इसके बाद लॉजिक गेट से ट्रुथ टेबल तो तुम बना ही सकते हो, दैट वाज टाइप 1, क्लियर, वो भी हमने किया, ग्रेट, ओके, सो move on to the next page and move on to the next type we have। We need to do this, yeah, now you will be given what a Boolean expression is represented by the following truth table, so you will be given a truth table and you have to derive a Boolean expression, okay, so let's just do this। Type 3 Boolean expression from truth table, okay, this type of question is basically करना क्या, ये पता लग गया, so we are going to derive what a Boolean expression from the truth table, right, and this type of expression is done using sum of products, done using what, sum of products, right, okay बेटा बोला नहीं, ठीक है, this is the method, this is the method we will be using, the method is sum of products, ठीक है, नाम से काफी क्लियर हो रहा है, sum of products, okay, so all you sum of products, yeah, all you need to do is कि आपने जाना है ट्रुथ टेबल पे और आपने देखना है कि आपके पास आउटपुट 1 किधर आ रहा है, आउटपुट 1 किधर आ रहा है, स्टेप 1 इज गो फॉर आउटपुट 1, ओके, तो मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं, क्लियर, 3 occasions थी जहाँ पे आई एम गेटिंग एन आउटपुट 1, आई एम गेटिंग माय फर्स्ट आउटपुट 1 व्हेन A was 0, B was 0 and C was 0, ऐसे ही बेटा जी, I was getting my first output 1 when A, B, C all were zeros, okay, 0 means it has a NOT gate over it, right, so I will put A bar, right, dot B bar dot C bar, done, ये तीनों क्या थे, zeros थे, हाँ, डॉट इसलिए के प्रोडक्ट को आपने डिस्प्ले करना है, अगर आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस एट ऑल, यू कैन सिंपली पुट A बार, B बार, C बार, क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, अगर इकट्ठे लिखे हो तो दिस मीन दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, राइट, द सेकंड वन वाज एट A was 1, B was 0 and C was 0, लेकिन the method is sum of products, so you are done with your first product, so you will put what, a plus symbol, is this fine, okay,
So A was 1, so simply A. B was 0, B bar, and C was 0, so C bar. Third one was at A was 1, B was 1, and C was 0. So plus A was 1, B was 1, C was 0, so C bar. Done. Yeah. Great. You got this? Yes. Okay. So sum of product समझ आ गया, and I have written very clearly कि हम लोग boolean expression derive कर रहे हैं. Is this fine? मैंने boolean equation derive नहीं की, and there is a huge difference between equation and expression जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी अगर आप expression में equation लिख दो that is fine, लेकिन equation में expression लिखना is not fun. आप समझ आ रही? अभी जो हमने लिखा है that is almost a boolean equation. That is a boolean equation. Is this fine? Expression क्या होते हैं? मैं लिखता हूँ A नॉट B नॉट C नॉट, फिर प्लस की जगह क्या लिखता और. समझ आ रही बात की? लिख दो. हाँ, अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों लिख देते हैं. एग्जांपल 2 में. Clear with this? Fair enough. Okay, so let's just find one more. I'm getting one over here. यहाँ पे और यहाँ पे. So the first one is that all are zeros, right? So it is A bar, B bar, C bar plus. The second is that A is 1, B and C are zeros. So it is A, B bar, C bar. And the third is that plus A is simple. Then you have B bar and C. और इसी को अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो आई विल पुट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ. अभी जो लिखी ऊपर वो इक्वेशन है. दिस इज एन इक्वेशन. नहीं बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सही भी बता दिया था. नॉट ए है ना, फिर आप क्या लगाओगे? नहीं, एंड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. एंड नॉट बी एंड नॉट सी. फिर ये बंद करोगे ना, फिर क्या लिखोगे? और. इज दिस फाइन? फिर उसके बाद क्या लिखोगे? A and not B and not C. Is this fine? और क्या लिखोगे? A and not B and C. Done? क्लियर हो गया जी? हाँ, एक्सप्रेशन समझ नहीं आया? ओके, ये देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? तो लिखा नॉट ए. बी के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. तो क्या लगा दिया? एंड. फिर नॉट बी एंड नॉट सी. बीच में प्लस आया तो क्या लगा दिया? और. ठीक हो गया बेटा? ओके, डन. सो वी आर डन विद दिस इज वेल. नाउ विल बी गिवन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू डू वर्ड. बता देता हूँ, दिस इज आवर टाइप 4. हाँ, नेक्स्ट इज आवर टाइप 4 जिसमें हम क्या काम करेंगे? Type 4, that is will be given a type 4 में logic circuit and truth table from expression or equation. Is this fine? Can I draw logic circuits and complete the truth tables for the following logic or Boolean expressions? ठीक है, so it is A or B, right? लिख देता हूँ इधर आपको. X is equal to A or B or not A and B. अब मैं इग्नोर नहीं करूंगा तुम सबको, ठीक है? समझ आ गई?
तुझे भी समझ आ गई? चल अवैस को उधर होके खड़ा हो, जल्दी कर, तू इधर आ जा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज हमने क्या करना होता है, आई हैव टू सिलेक्ट हाउ मेनी अल्फाबेट्स आई एम वर्किंग ऑन, है ना। तो ए और बी आ गया मेरे पास, तो ये आ गया ए और ये आ गया जी बी, राइट। करने तुम लोगों ने आज घर जाके बहुत सारे टॉपिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, तो ए और बी क्या हो रहे हैं, और ये हो रहे हैं, तो ये आ गया ए और बी। डन विद द फर्स्ट पोर्शन। सेकंड says not a, so take a y from a और इसको क्या कर दो, not कर दो, and b, okay, take a y from b और दोनों को क्या कर दो, and कर दो। डन विद द सेकंड पोर्शन। और बीच में क्या करना है, और करना है, तो ये बीच में और हो गया, एंड देन आउटपुट एज x। डन बेटा, ग्रेट। ओके, और ले लेते हैं एग्जांपल कोई। इफ स्विच k is on और switch L is on, है ना। So I need K and L, so I'm gonna put K और ये आ गया L। So K is on, so simply K, है ना। और switch L is on और बीच में क्या करना है इनको, और, right। Second portion says switch K is on and switch M is off, so you need third, that is M। तो क्या है, K on है, तो take Y from K, and M क्या है, off, तो नॉट लग जाएगा। अब बीच में क्या हो रहे हैं, एंड। डन। एंड देन थर्ड पोर्शन से स्विच एम इज ऑन, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, एम। तीनों पोर्शन हो गए। तो पहले दो पोर्शंस क्या हो रहे हैं आपस में, और, सो ये हो गए जी क्या, और, राइट। एंड देन सेकंड और थर्ड क्या हो रहे हैं, और, तो ये हो गए क्या, और, एंड देन रिजल्ट क्या आ रहा है, टी। डन, समझ आया? Okay, so those who have questions, those who are raising hand within the question, जी बेटा। कोई क्वेश्चंस में ऑन को 0 भी असाइन नहीं, कर देता है, on तो इसमें boolean क्या operator है, on is 1, off is 0, similarly true is 1, false is 0। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, 1, नेगेटिव कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0। ठीक है सर। Everyone समझ आ गया? Okay, so this was our type 4. Now we'll move on to type 5. 6 is proving a truth table. ये टाइप 5 है। Okay, type 5, proving a truth table or logic equation. Okay, see, the following truth table is for a logic gate called the XNOR gate. What it is called? XNOR, XOR नहीं, XOR, यानी कि XOR के ऊपर क्या लग गया, नॉट लग गया। By completing the truth table below, show that the XOR can be represented by the following expression. बात समझ आई? ठीक है, उसके ऊपर हमें एक ट्रुथ टेबल दिया है ना। आई होप यू कैन सी दिस। ओके, सो ये इसको हम लोगों ने करना है, इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना है, राइट। और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाए, सेम। ओके, दिस इज क्वाइट क्लियर। पहले है ए एंड बी, राइट। सो आई एम गोना सिंपली पुट 0 0 0 1। डन। फिर है नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो यू नीड not a first, so not a would be 1 1 0 0, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और not b would be 1 0 1 0, so इनको एंड करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 1 into 1 is 1, 1 into 0 would be 0 0 and 0, ठीक है। ओके, डन विद दिस। फिर कहता है a and b और not a and not b, तो दोनों को क्या कर दो, और, है ना। Okay, so 0 plus 1 is 1. This would be 0 0 1. Are they identical? So proof
Similarly, he can give you two equations, two different equations to prove. So what you would do, for an example, कोई बड़ा लंबा सवाल आ जाए तो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ दो लॉजिक सर्किट दिए हुए है ना, तो ऑल यू नीड टू डू है कि आप दोनों के क्या बना दो, ट्रुथ टेबल बना दो। अगर आपको ट्रुथ टेबल डायरेक्ट बनाते हुए मसला हो रहा है इक्वेशन से, तो आप क्या बना सकते हो, जल्दी से रफ वर्क में उनके लॉजिक सर्किट्स बना लो और लॉजिक सर्किट से आप उसका ट्रुथ टेबल बना लो, तो आपको प्रूफ करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वी हैव डन अ लॉट ओवर हियर। एक हमारा रहता है कि अगर आपको क्या आ जाए, लॉजिक सर्किट आ जाए और उससे हमने क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो वो कर लें जरा एक दो, है ना। तो हमारे पास क्या है, ए और बी है भाई, और क्या हो रहे हैं, और तो मैं क्या कहता हूँ, ए और बी, ठीक है जी, ओके। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, ये देख लो ना, क्या है क्या, ये बताओ, एंड आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ऐसे ही है जी, बी और हो रहा है किसके साथ, नॉट सी के साथ, ऐसे ही है जी, और बीच में ये खुद ब खुद क्या होगी, एंड, ठीक है, सही हो गया बेटा। अच्छा, सो क्या हो रहा है बेटा, ए और बी क्या हो रहे हैं, एंड, सो आई एम गोना पुट ए एंड बी, ठीक है जी, ठीक है। अब फिर क्या आ गया आपके पास, एंड आ गया, ठीक है, ये आ गया बी से वायर, तो नॉट बी, और क्या हो रहा है, और हो रहा है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है, सही हो गया। क्या दिया हुआ है, नॉट ए, है ना, ये नॉट ए हो गया, ठीक है, और ये एंड हो रहा है किसके साथ, ए और बी के साथ, नॉट ए एंड ए और बी, ऐसी। अब इसको मतलब थोड़ा सा हमें सही तरह लिखना पड़ेगा, तो हम इसको नॉट ए कर देते हैं पहले पोर्शन को, दूसरे को ए और बी कर देते हैं, ये आपस में क्या हो गए, एंड हो गए, ठीक है। अब ये वायर आ रही है किसके साथ, नॉट हो रहा है किसके बाद, इस एंड को, ये पूरा जितना भी हमने यहाँ तक लिखा, मतलब ये सारा जितना लिखा है ना, मतलब ये सारा हमने बेटा जितना लिखा सारा क्या हो रहा है, नॉट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नॉट। ये बात समझ आई कि नहीं आई, है ना, हो गया, ठीक है। और ये आ रहा है नॉर, है ना, अब ये आपने सारा बना लिया यहाँ तक, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, नॉर करना है किसके साथ, इसके साथ, दैट इज बेसिकली व्हाट, ए और बी, डिड यू गॉट दिस, ठीक है। तो अगर मैं ये पहले करता तो ऑब्वियसली आपको कभी भी समझ ना, कौन सा, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ आ गया कि मैंने ये सारा लिखा है ना, यहाँ तक लिखा और उसको क्या कर दिया, नॉट। अब आगे हो क्या रहा है, नॉर हो रहा है, ठीक है। एक वायर तो यही आ गई है ना, जो यहाँ तक आ रही है वो तो ये लिखी हुई है, ऐसी है बेटा, ठीक है। और दूसरी वायर आ रही है कहाँ से, ए और बी से, यू गॉट दिस। तो मेरी बात के लिए इतना मुश्किल तुम्हें पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, आ भी जाए तो खैर है, हो जाएगा सॉल्व, ये पता